Hello, dear students. We are here with another chapter, the stamp album. We shall discuss this chapter in detail. So, before we begin the lesson, let us have a outlook and overview of the chapter. Actually, it is the story of two boys, Rajappa and Nagarjuna. Both are in the habit of collecting stamps, and they possess, both of them possess their own stamp album. Rajappa works very hard in order to collect extraordinary stamps, whereas Nagarjuna, who reads with him in the same class, gets a stamp album from his uncle as a gift. Out of jealousy, Rajappa steals away. First, he steals away his classmates' stamp album, Nagarjuna's stamp album, and then burns it. Then he has a sense of some sin. He thinks that he has committed something wrong which does not let him have rest, and he feels pain at heart after doing this. So, how he can overcome his sin or his crime or the sense of guilt? He returns to Nagarjuna his own album in place of his of Nagarjuna's, as he has burnt it. So let us more we shall discover after giving a reading to this chapter. So without wasting time, let us go ahead and find out what happens to Nagarjuna's album and how does Rajappa then overcomes his sin that is committed on his own part. The stamp album. So let us begin this lesson. Stamp album. Stamp means the stamps of the stamps ticket. Okay, and album books where the stamps are collected in a book. So here is the story of Rajappa who owns a self-made beautiful stamp album. However, Rajappa's stamp album soon gets overshadowed. Why does this happen? How does Rajappa deal with it? Read and find out. We are introduced that Rajappa owns a stamp album which is his which is made by himself, and there is another character we are introduced with Rajappa who gets a stamp album as a gift from somebody, his relative, or you can either say that he gets it as a gift from his uncle who lives in a foreign country. तो स्टोरी में राजप्पा जिसकी एक सुंदर सी स्टैम्प एल्बम है और उसने वो स्टैम्प एल्बम सेल्फ मेड है, खुद उसने बनाई है. दूसरे कैरेक्टर है राजप्पा जिनकी स्टैम्प एल्बम है वो ओवर सैडोड हो जाती है, मतलब वो इतनी फेमस नहीं रहती. ओवर सैडो वो परछाई में दब के रह जाती है जब राजप्पा की एल्बम जैसे नागार्जुन की जो एल्बम आती है. इस वजह से ऐसा क्यों होता है? हाउ डज राजप्पा डील विद इट? कैसे राजप्पा इस सब के साथ डील करता है, कैसे वो स्थिति से निपटता है? रीड एंड फाइंड आउट. पढ़ते हैं चैप्टर को और पता लगाते हैं कि क्या कैसे इस कहानी में होता है. राजप्पा sensed a sudden drop in his popularity. For the past 3 years, everyone had been crowding around Nagarjuna. राजप्पा को महसूस होता है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, उसकी प्रसिद्धि थी, उसमें अचानक से गिरावट आ गई है. सेंस्ड आभास हुआ. ए सडन ड्रॉप एक अचानक से गिरावट आ गई है उसकी पॉपुलैरिटी में. फॉर द पास्ट 3 years एवरीवन हैड बीन क्राउडिंग अराउंड नागार्जुना.
पिछले 3 वर्षों से हर कोई हैड बिन क्राउडिंग, भीड़ बना के खड़ा हुआ था, अराउंड नागार्जुना, नागार्जुना की स्टैंप एल्बम के इर्द गिर्द। तो वजह क्या थी? उसकी पॉपुलैरिटी में, राजप्पा की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें गिरावट की वजह ये थी कि पिछले 3 दिनों से नागार्जुना की स्टैंप एल्बम जो आई थी उसके इर्द गिर्द सभी बच्चे भीड़ बना के खड़े हो जाते थे और राजप्पा की एल्बम कोई नहीं देखता था। Rajappa tried to tell them that Nagarjuna had been swollen-headed, but no one paid any attention to him, for Nagarjuna was generous in sharing the stamp album his uncle had sent him from Singapore. The boys gathered around Nagarjuna and devoured the album with their eyes till the school bell rang for the morning class. रजप्पा ट्राई टू टेल देम, रजप्पा ने उनको बताने की कोशिश की, अपने दोस्तों को जो नागार्जुना की स्टैंप एल्बम के इधर इर्द गिर्द टोली बना के खड़े हो जाते थे देखने के लिए, तो उनको बताने की कोशिश की रजप्पा ने कि नागार्जुना हैड बिकम स्वोलन हेडेड, कि नागार्जुना को तो घमंड हो गया है। स्वोलन हेडेड बड़ा प्राइड होना या उसको घमंड हो गया है। बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू हिम, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फॉर नागार्जुना वॉज जेनरियस इन शेयरिंग हिज स्टैंप एल्बम, क्योंकि फॉर नागार्जुना काफ़ी उदार था, काफ़ी उदार दिखाई दे रहा था वो। शेयरिंग हिज स्टैंप एल्बम हिज अंकल हैड सेंट फ्रॉम सिंगापुर, अपनी एल्बम को शेयर करने में, शेयर करना इन द सेंस कि वो दिखा रहा था सभी को जो स्टैंप एल्बम उसके अंकल ने, उसके चाचा ने सिंगापुर से यानी कि विदेश से उसके पास भेजी थी गिफ्ट के रूप में। उस स्टैंप एल्बम को दिखाने में बड़ा जेनरियस था, बड़ा उदार था। द बॉयज गैदर्ड अराउंड नागार्जुना एंड डिवोर्ड द एल्बम विद देयर आइज स्टिल द स्कूल बेल रिंग फॉर द मॉर्निंग क्लास। जो लड़के थे स्कूल में पढ़ने वाले, द बॉयज गैदर्ड अराउंड नागार्जुना, नागार्जुना की स्टैंप एल्बम के चारों खड़े होते थे। डिवोर्ड द एल्बम विद देयर आइज, जैसे वो अपनी आंखों से उस एल्बम को निगल लेना चाहते थे, मतलब इन द सेंस निगल लेना चाहते थे कि वो, उनकी आंखें बिल्कुल जैसे उसको स्टैंप एल्बम के अंदर से सारी चीज़ें डिवोर कर रही थी, निगल रही थी, मतलब उसको देखने में काफ़ी वो उत्साहित नजर आ रहे थे। टिल द स्कूल बेल रिंग, और जब तक वो उसके इर्द गिर्द खड़े रहते, जब तक, टिल जब तक कि स्कूल बेल रिंग नहीं होती, बज नहीं जाती, फॉर द मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग में सुबह क्लास शुरू होने से शुरू होने तक, जब सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए बेल होती थी, जब तक वो बच्चे, जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती थी, जब तक वो बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े रहते थे देखने के लिए। दे होवर्ड अराउंड हिम एट लंच ब्रेक, और वो उसके इर्द गिर्द लंच के घंटों के दौरान भी, रिसेस के दौरान भी होवर्ड अराउंड, उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। होवर्ड होता है बच्चों मंडराना। एट लंच ब्रेक, खाने के समय दोपहर के। इन द इवनिंग, और शाम को। इन्वेडेड हिज हाउस, उसके घर पे ही पहुंच जाते थे। इन्वेडेड आक्रमण कर देते थे, मतलब इन द सेंस कि उसके घर में पहुंच जाते थे, वहां पे भी दबिश दे देते थे। नागार्जुना शोड द एल्बम टू ऑल ऑफ देम विदाउट ए ट्रेस ऑफ इम्पेशेंस, और नागार्जुना भी उनको सभी को अपने स्टैम्प एल्बम शोड दिखा देता था, ऑल ऑफ देम सभी को, विदाउट ए ट्रेस बिना एक चिन्ह के, ऑफ इम्पेशेंस बिना अधैर्य के, यानी कि वो धैर्य रखता था, विदाउट ए ट्रेस कोई ऐसी झलक नहीं होती थी, कोई ऐसी निशानी नहीं होती थी जिससे कि इम्पेशेंस या अधैर्यता का आभास हो। ही ओनली मेड वन स्टिपुलेशन, वो केवल एक ही उनको स्टिपुलेशन देता, मतलब एक ही कंडीशन रखता था उनके सामने। नो वन मस्ट टच द एल्बम, कोई भी एल्बम को नहीं छुएगा। ही ओपनड इट आउट ऑन हिज लेप
and turned over the pages himself and let everyone gaze to their fill. वो खुद एल्बम को खोलता था. He opened it out on his lap. वो खुद इसको अपनी गोद में रख के खोलता था. लेप होता है गोद. And turned over the pages, और खुद उनके पेज को वो पलटता. Himself स्वयं. And let everyone gaze to their full, हर किसी को वो टकटकी लगाकर to their fill, उनके जब तक उनको पूरा भर न जाए, उनका मन न भर जाए, जब तक उनको टकटकी लगाकर देखने के लिए अलाउ करता था. The girls wanted to have a look at the album too. लड़कियां भी उस एल्बम को देखना चाहती थी. Wanted to have a look. Have a look मतलब देखना उसको. At the album too भी, वो भी देखना चाहती थी. The boldest of them, पार्वती, जो सबसे बहादुर लड़की थी, उनसे ज़्यादा मतलब कह लीजिए इन द सेंस कि वो बिल्कुल फ्रैंक थी बोलने में, वो बोल्डेस्ट थी. पार्वती केम अप टू नागार्जुना, वो नागार्जुना के पास आई. एंड आस्क्ड हिम ऑन बिहाफ ऑफ द गर्ल्स, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से, द गर्ल्स और लड़कियों की तरफ से. आस्क्ड पूछा, उससे पूछा. नागार्जुना यानी कि उससे एल्बम मांगी. नागार्जुना गेव हर द एल्बम आफ्टर पुटिंग ए जैकेट ऑन इट, और नागार्जुना ने भी उसको अपनी एल्बम दे दी. आफ्टर पुटिंग ए जैकेट ऑन इट, इसके ऊपर जैकेट डाल के, मतलब जैसे जैकेट होता है कवर डाल के अपने स्टैम्प एल्बम के ऊपर, उसने कवर डाल के अपने स्टैम्प एल्बम को पार्वती को दे दिया. डालने के बाद उसको दे दिया. द एल्बम वाज रिटर्न टू हिम इन द इवनिंग, और फिर वो एल्बम उसको शाम को लौटाई गई. आफ्टर ऑल द गर्ल्स हैड सीन इट, जब सब लड़कियों ने उसको देख लिया. आफ्टर ऑल, जब उसके बाद जब सभी लड़कियों ने उसको देख लिया, तो शाम को बाद में वो एल्बम नागार्जुना को लौटा दी गई. नो वन नाउ मेंशन राजप्पा's एल्बम और पेड हिम एनी अटेंशन, अब कोई भी राजप्पा की एल्बम के बारे में जिक्र नहीं करता था, उसका कोई मेंशन नहीं करता था, उल्लेख नहीं करता था. और पेड हिम एनी अटेंशन, और न ही उसको उसकी ओर कोई ध्यान देता था. वंस राजप्पा's एल्बम हैड बीन वेरी फेमस, एक बार तो यानी शुरू शुरू में जो एक बार तो राजप्पा की जो एल्बम थी हैड बीन वेरी फेमस, वो बड़ी फेमस थी. सभी कोई उसके बारे में जानता था, सभी कोई उसके बारे में, वो बड़ी प्रसिद्ध एल्बम थी शुरू शुरू में. तो राजप्पा कलेक्टेड स्टैम्प्स इन द पेन स्टेकिंग वे, पेन स्टेकिंग वे बड़ी पेन लेकर, मतलब पूरे जोखिम उठा के, पूरे दर्द का एहसास होता है जिसमें काम करने में, ऐसे पेन स्टेकिंग पूरे लेबर से, पूरे मतलब परिश्रम से राजप्पा ने सारी की सारी स्टैम्प्स को कलेक्ट किया हुआ था. कलेक्टेड स्टैम्प्स इन ए पेन स्टेकिंग वे, एक पेन स्टेकिंग वे में उसने इकट्ठा किया था. बीज कलेक्ट मनी, जिस इतने पेन स्टेकिंग वे से, जितने पेनफुल तरीके से, जितनी मेहनत से मधुमक्खियां शहद को इकट्ठा करती हैं, तो राजप्पा ने अपनी स्टैम्प एल्बम पर बड़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी थी. और अचानक से जो नागार्जुना की वहाँ पे एल्बम आई, तो उसको बड़ी अपसेट कर रही थी. कोई भी बच्चा राजप्पा की स्टैम्प एल्बम की ओर ध्यान नहीं देता था. ठीक है, इट वॉज हिज ऑल लाइफ, ये उसका पूरा जीवन थी, राजप्पा का पूरा जीवन थी जो उसकी स्टैम्प एल्बम थी, लेकिन आज उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था. ही वुड शेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू विजिट अदर स्टैम्प कलेक्टर्स. वो क्या करता था, वो बड़ी जल्दी उठता था. सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, बाहर जल्दी ही सुबह निकल जाता था हर रोज. टू विजिट अदर स्टैम्प एल्बम कलेक्टर्स, दूसरे स्टैम्प कलेक्टर्स के पास जो संग्रह करते थे स्टैम्प्स का, वो उनके घर जाता, उनके पास जाता सुबह. ही वुड बार्टर 2 स्टैम्प्स ऑफ पाकिस्तान फॉर ए सोलिटरी यूएसएसआर स्टैम्प, और वो अदला बदली करता था. बार्टर, बार्टर अदला बदली. ही वुड बार्टर 2 स्टैम्प्स, 2 स्टैम्प्स के बदले, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की 2 स्टैम्प्स के बदले, वो फॉर ए सोलिटरी, अकेली, अकेली जो यूएसएसआर की स्टैम्प होती थी, उसके प्राप्त करने के लिए 2
पाकिस्तान के स्टैम्प एल्बम वो उनको स्टैम्प्स वो उनको बदले में देता था। In the evening, he would dump his school books in a corner, stuff his snack in the pocket of his shorts, gulp down a cup of coffee and dance out again. और शाम को क्या होता था? In the evening, he would dump his school books. वो अपनी स्कूल की जो बुक्स थी वो एक कोने में डाल देता था, in a corner. बुक्स को वो एक तरफ कोने में रख देता, stump a snack in the pocket, और जल्दी से अपनी जेब में एक स्नैक्स खाने की कोई चीज़ रख लेता, ग्लप डाउन एक कप ऑफ कॉफ़ी, और जल्दी से कॉफ़ी एक कप कॉफ़ी वो पीता, एंड डेस आउट अगेन, और दोबारा से वो अपने स्टैम्प्स के काम में लग जाता था। 4 मील्स अवे ए बॉय हैड ए कनाडा, उसको पता लगता कि 4 मील की दूरी पर एक लड़के के पास कनाडा की स्टैम्प्स हैं। ही हैड द बिगेस्ट एल्बम इन हिज क्लास, उसके पास क्लास में सबसे बड़ी एल्बम थी। The revenue officer son wanted to buy it for 25 rupees. जो रेवेन्यू ऑफिसर था, कर अधिकारी, टैक्स के जो अफसर होते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर के बच्चे ने, लड़के ने, उसके बेटे ने wanted to buy it for 25 rupees, वो उससे 25 रुपए में उस स्टैम्प एल्बम को खरीदना चाहता था। रेवेन्यू ऑफिसर का लड़का राजप्पा की एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था। द चिक ऑफ इट राजप्पा रिटेलिएटेड, राजप्पा ने प्रत्युत्तर दिया, विरोध किया कि ये तो चीक है, बड़ी धौंस है भाई। विल यू सेल योर बेबी ब्रदर टू मी फॉर 30 रुपीज़, क्या तुम अपने छोटे भाई को, बेबी ब्रदर को 30 रुपए में मेरे को बेच दोगे? विल यू सेल योर बेबी ब्रदर टू मी फॉर 30 रुपीज़। द बॉयज अपलाउडेड हिज रिटोर्ट, और बच्चे उसके जवाब पे, रिटोर्ट होते हैं जवाब, उसके उत्तर पे तालियां बजाते। तो लाइक दिस ही रिस्पॉन्डेड टू द रेवेन्यूज कलरक सन, बट नाउ नो वन लुक्ड एट हिज एल्बम, लेकिन अब की जो बात करें तो उसकी स्टैम्प एल्बम की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था। वर्स स्टिल, ये बहुत बुरी हो गई थी। They made unfavorable comparisons with Nagarjuna's, saying that his album was not fit to hold a candle to Nagarjuna's. वो स्टिल वो इतनी बुरी थी कि they made unfavorable comparisons, वो अनुचित सी तुलनाएं कर देते थे विद नागार्जुना की एल्बम में और रजप्पा की एल्बम में, ये कहते हुए saying his album was not fit to hold a candle to नागार्जुना की, उसकी जो स्टैम्प एल्बम है वाज नॉट फिट, वो इतनी सही नहीं है टू होल्ड ए कैंडल टू नागार्जुना की स्टैम्प एल्बम को एक मोमबत्ती भी दिखा सके, मतलब उसके सामने वो थोड़ी सी भी नहीं है, एक बिल्कुल मध्यम रोशनी की तरह माफिक भी नहीं है उसके लिए वो। राजप्पा रिफ्यूज टू लुक एट नागार्जुना's एल्बम, और राजप्पा बिल्कुल मना कर दिया उसने कि वो नागार्जुना की एल्बम को बिल्कुल नहीं देखेगा। When other boys hovered over it, he turned his face away. जब दूसरे बच्चे, उसकी क्लास के लड़के, other boys hovered over it, इसके ऊपर मंडराए होते थे, he turned his face away, वो अपना चेहरा इससे दूर कर लेता था, मोड़ देता था अपने फेस को। But he did not try to glance at it through the corner of his eyes, लेकिन कभी उसने कोशिश नहीं की कि वो, बट ही डिड ट्राई, लेकिन कभी कभी वो कोशिश करता था, वो कोशिश जरूर करता था टू ग्लैंस एट इट, इसके ऊपर नज़र डालने के लिए, ग्लैंस होता है नज़र डालना, थ्रू हिज कॉर्नर ऑफ हिज आइज, अपनी आंखों के कोनों से चोरी चोरी वो इसकी तरफ देखने की कोशिश जरूर करता था। इट वॉज इंडीड ए ब्यूटी, ये बिल्कुल वास्तविक रूप में, इंडीड वास्तविक रूप में बिल्कुल सुंदर एल्बम थी। Maybe it did not have the same stamps as Rajappa's. शायद maybe it did not have the same stamps, इसके अंदर ऐसी ही स्टैम्प्स नहीं थी जैसी कि राजप्पा की स्टैम्प एल्बम में थी। And might even have had not as many as his, और संभवतः शायद, might संभवतः या शायद, even have had not as many, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, his जितनी उसके पास थी, राजप्पा की स्टैम्प एल्बम में जितनी थी, तो उसकी तुलना में नागार्जुना's की स्टैम्प एल्बम में बहुत कम स्टैम्प्स थी।
बट इट वॉज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। लेकिन जो नागार्जुना की एल्बम थी वो अपनी ही तरह की एक सही एल्बम थी। नो लोकल शॉप हैड वन लाइक इट। कोई भी जो लोकल दुकान थी वहाँ पे शॉप थी उस जैसी स्टैम्प एल्बम उन दुकानों पे भी नहीं थी। Nagarjuna's uncle had written his nephew's name in bold letters on the first page of the album. नागार्जुना के अंकल ने नागार्जुन के अंकल ने अपने भांजे की स्टैम्प एल्बम जो उसने उसको गिफ्ट की थी उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में काफ़ी मोटे मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ था फर्स्ट पेज पे एज नागार्जुनाज की जैसे नागार्जुना के थे। दिस वॉज फॉलोड बाई एन इंस्क्रिप्शन। नागार्जुना नाम इसके ऊपर लिखा हुआ था और इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था, एक बात भी लिखी हुई थी। टू द सेमलेस रेच कि उस बेशरम के लिए, सेमलेस बेशरम, रेच शैतान के लिए, ट्राइंग टू स्टील दिस एल्बम जो इस स्टैम्प एल्बम को चुराने की कोशिश करेगा उसके लिए, सी दाउ माई नेम अवे तुम देखो, दाउ तुम्हारा, माई नेम अबो तुम देखो कि मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है। दिस इज माई एल्बम ये मेरी एल्बम है। इट इज़ माई प्रॉपर्टी ये मेरी प्रॉपर्टी है। माइन अलोन मेरे की अकेले की। एज लॉन्ग एज द ग्रास इज ग्रीन द लोटस आर रेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जब तक ये मेरी है, जब तक घास हरा है, कमल के फूल लाल हैं, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में छिपता है, जब तक ये काम है, जब तक ये एल्बम मेरी है। द बॉयज कॉपीड द लाइन्स इन देयर एल्बम्स और दूसरे लड़कों ने भी इन पंक्तियों को अपनी नोटबुक्स के ऊपर कॉपी कर लिया था, चीट कर लिया था। सो डिड द गर्ल्स इन देयर बुक्स एंड नोटबुक्स ऐसे ही लड़कियों ने भी अपनी बुक्स और नोटबुक्स में इन चीज़ों को उस इंस्क्रिप्शन को राइट डाउन कर लिया था, वहाँ से कॉपी डाउन कर लिया था। राजप्पा ग्राउल्ड राजप्पा गुर्राया वाई आर यू सच कॉपी कैट्स तुम कॉपी कैट्स क्यों, नकलची बिल्लियाँ क्यों बने हुए तुम। द बॉयज ग्लेड एट हिम लड़के उसकी तरफ देखा। एंड कृष्णा रिटोर्टेड और कृष्णा ने जवाब दिया, गो गो अवे यू जिलियस बॉय तुम जलने वाले जलखोर लड़के, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम तो जिलियस हो, बिल्कुल जल रहे हो, जलते हो। जिलियस मी मैं जिलियस हूँ। वाई शुड आई बी मैं जिलियस क्यों बनूँ। माई एल्बम इज मच बिगर इजंट इट मेरी एल्बम तो बहुत बड़ी है, क्या नहीं है। इजंट इट दिस इज क्वेश्चन टैग, क्या ऐसा नहीं है। योर्स डज नॉट हैव स्टैम्प्स लाइक दिस तुम्हारी में ऐसी स्टैम्प्स नहीं है, तुम्हारी एल्बम में ऐसी स्टैम्प्स नहीं है। लुक एट द इंडोनेशियंस ब्यूटी देखो इंडोनेशिया की बनी स्टैम्प कितनी सुंदर है। होल्ड इट अप इसे पकड़ो एंड सी एंगेज द लाइट इसको रोशनी में लेकर देखो कितनी सुंदर है ये। ही डज नॉट हैव द स्टैम्प्स आई हैव जो मेरे पास स्टैम्प्स हैं वो उसके पास नहीं है। रजप्पा ने कहा ही डज नॉट हैव द स्टैम्प्स आई हैव जो मेरे पास हैं वो उसके पास नहीं है। हाँ सो वस वन ही हैजंट हमें वो दिखाओ जो उसके पास नहीं है, यानी कि कहने का मतलब उसके पास सभी की सभी स्टैम्प्स हैं। तो उससे मांग कर रहे हैं बच्चे कि तुम हमें वो दिखाओ जो उसके पास नहीं है। योर एल्बम इज ओनली फिट फॉर द डस्टबिन तुम्हारी एल्बम तो डस्टबिन के लिए सही है, उपयुक्त है, यानी कि इसको डस्टबिन में फेंक दो तुम। टॉन्टेड छेड़ते हुए, कृष्णा ने कहा टॉन्टिंग की करते हुए। द बॉय चंटेड और वो लड़के बुदबुदाए हंसने लगे। गार्बेज एल्बम ऐसे वो चिढ़ाने लगे, चंटेड करने लगे, वहाँ पे बोलने लगे। राजप्पा रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द आर्ग्यूमेंट राजप्पा को फिर महसूस हुआ, रियलाइज किया उसने, फ्यूटिलिटी अपनी निरर्थकता कि कोई फायदा नहीं है इस बहस का। द कंटिन्यूइंग द आर्ग्यूमेंट इस बहस को ऐसे लगातार जारी रखने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि सभी उसके एल्बम को गार्बेज एल्बम कहते हैं तो वो ऐसे ही कहते रहेंगे, उनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हिम टू बोल्ड अप
his stamp collection. How long, कितना समय लगा था उसको अपनी स्टैम्प एल्बम को बनाने में. How long, कितना समय. It had taken, इसने लिया था, him उससे, to build up, बनाने में, his stamp collection, उसकी स्टैम्प कलेक्शन को. He had built it stamp by stamp, उसने उसको एक एक स्टैम्प के साथ जोड़ा था, एक एक स्टैम्प इसके अंदर डाली थी. And then, और तब, the postman had brought this album from Singapore, और तब पता नहीं कहाँ से पोस्टमैन है जो, had brought this album, ये एल्बम लेकर आया from Singapore, सिंगापुर से. And overnight, नागार्जुना, और एक ही रात में, overnight, एक ही रात में, नागार्जुना की जो एल्बम है had become all important, वो बिल्कुल important बन गई. He had built it stamp by stamp, and the postman had brought this album from Singapore, and overnight Nagarjuna's had become all important, और इसने नागार्जुना को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया. The boys did not know the difference between the two albums, ये लड़के दोनों एल्बम के बीच के फर्क को नहीं समझते, उसको नहीं जानते. No amount for explaining would make the slightest difference, कितनी भी मात्रा में, no amount, कितना भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया जाए, कोई भी अमाउंट हो, would make the slightest difference, उससे थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा. रजप्पा raised within, रजप्पा के अंदर गुस्सा था, वो गुस्से से भर गया, raised. He began to hate going to school, वो स्कूल जाने से नफरत करने लगा. How was he to face the boys, वो लड़कों को कैसे सामना करे. Usually on Saturdays and Sundays he hectically stamp hunted, but this weekend he barely stayed out the house. हर हफ्ते क्या होता था, प्राय अक्सर, यूजली सैटरडे संडे के दिन वो जल्दी से, हेक्टिकली स्टैम्प हंटेड, स्टैम्प्स को इकट्ठा करने के लिए बड़े एक्टिवली वो निकल पड़ता था. बट दिस वीकेंड, लेकिन इस हफ्ते तो, ही बेयरली, इस संडे तो ही बेयरली, वो मुश्किल से ही, बेयरली स्टेड आउट ऑफ द हाउस, घर से वो मुश्किल से ही हिला, बाहर निकला. यूजली नॉट ए डे पास्ट विदाउट हिज टर्निंग द पेजेस ऑफ हिज एल्बम ओवर एंड ओवर अगेन. प्राय अक्सर एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वो अपनी स्टैम्प एल्बम के पेजों को पलट पलट कर दोबारा न देखे, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था. इवन एट नाइट ही वुड स्नीक आउट ऑफ द बेड टू लुक एट द एल्बम. कई बार तो वो रात को सोते हुए भी बेड से बाहर निकल के अपनी स्टैम्प एल्बम को उठ के देखता था. बट 2 days हैड पास्ड एंड ही हैड नॉट टच्ड इट, लेकिन अब 2 दिन गुजर गए और उसने अपनी स्टैम्प एल्बम को टच तक भी नहीं करके देखा. द साइट ऑफ इट फिल्ड हिम विद एंगर, इसकी एक नज़र, एक झलक भी उसको गुस्से से भर देती थी. कंपेयर टू नागार्जुनाज, हिज एल्बम नाउ सीम्ड ए बंडल ऑफ रैग्स. नागार्जुना की एल्बम से तुलना करते हुए उसको लगता था कि उसकी, नाउ हिज स्टैम्प एल्बम सीम्स टू बी ए बंडल ऑफ रैग्स, की उसकी स्टैम्प एल्बम तो एक जो कूड़े का बंडल है, कागजी रद्दी कागजों का एक बंडल है. इन द इवनिंग राजप्पा वेंट टू नागार्जुना, शाम को राजप्पा नागार्जुना के पास गया, उसके घर गया. ही हैड मेड अप हिज माइंड, उसने अपना दिमाग में सोच रखा था. ही कुड नॉट पुट अप विद द इग्नोमिटी एनी लॉन्गर, कि वो अपने अपमान को और ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं कर सकता. पुट अप विद, सहन करना. इग्नोमिटी मीन्स हमलेसन, उसके अपमान को, इंसल्ट को वो ज़्यादा, एनी लॉन्गर, ज़्यादा दिनों तक वो सहन नहीं कर सकता. आफ्टर ऑल नागार्जुना हैड ओनली जस्ट चांस्ड अपॉन ए स्टैम्प एल्बम, क्योंकि नागार्जुना को तो आखिरकार एक स्टैम्प एल्बम बाई चांस मिली थी. जस्ट चांस्ड अपॉन ए स्टैम्प एल्बम. वट डिड ही न्यू ऑफ द मिस्ट्रीज, उसको क्या पता क्या रहस्य होते हैं, क्या मिस्ट्रीज होती हैं. ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग की क्या मिस्ट्रीज हैं, किस प्रकार से स्टैम्प्स को इकट्ठे किया जाता है, उसको इन बातों का क्या पता, उसको तो सिर्फ एक गिफ्ट मिला है. एंड हाउ द एक्सपर्ट्स इवेलुएटेड देम, और कैसे एक्सपर्ट लोग हैं
जो उनको मूल्यांकन करते हैं। किस प्रकार से एक स्टैंप को इकट्ठा करने के लिए, एक एल्बम को बनाने के लिए किस प्रकार से एक्सपर्ट लोग इवैल्यूएशन करते हैं और अच्छे अच्छे स्टैंप्स को इकट्ठा करते हैं। ये बात नागार्जुन को क्या पता, राजप्पा ने ऐसा सोचा। ही प्रोबेबली बिलीव्ड, संभवतः बिलीव्ड विश्वास करता था, दैट द बिगर द स्टैम्प द मोर वैल्यूएबल इट वॉज। शायद वो संभवतः विश्वास करता था कि स्टैम्प जितनी भी बड़ी है वो इतनी ही कीमती होगी। इट वॉज, और वन फ्रॉम ए पावरफुल कंट्री वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रॉम ए वीकर कंट्री। और एक जो स्टैम्प किसी शक्तिशाली देश की है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वॉज मोर इम्पोर्टेंट, किससे, देन फ्रॉम ए वीकर कंट्री, जो एक कमजोर देश की स्टैम्प है उससे ज़्यादा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, नागार्जुन वॉज एन एमेच्योर, नागार्जुन एक छोटा बच्चा है, अपरिपक्व बुद्धि का है, एमेच्योर है वो। राजप्पा कुड इजिली पाम ऑफ हिम, राजप्पा उसको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। द लेस वैल्यूएबल स्टैम्प्स एंड वॉक अवे विद द गुड वंस, वो उसको लेस वैल्यूएबल स्टैम्प्स यानी कि कम मूल्य की, यानी कि जो इतनी इंपॉर्टेंट स्टैम्प्स नहीं है वो उसको दे सकते हैं और बदले में उससे अच्छे वाले लेके वहां से जा सकता है। तो इस मनसा से वो उसके घर पे आया। ही हैड फूल्ड मैनी अदर्स बिफोर, उसने पहले भी बहुत से लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाया था। द वर्ल्ड ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज राइफ विद द कनिंग, जो स्टैम्प एल्बम का कलेक्टिंग का जो तरीका होता है वो इस दुनिया में चतुर लोगों का होता है, एंड ट्रिकी लोगों का काम होता है। नागार्जुन वाज ओनली ए बिगनर, और नागार्जुन तो केवल स्टैम्प कलेक्शन के मामले में बिल्कुल बिगनर है, वो तो बच्चा ही है अभी। रजप्पा वेंट स्ट्रेट अपस्टेयर्स टू नागार्जुना's रूम, राजप्पा सीधा नागार्जुन के कमरे में सीढ़ियों से चढ़कर गया, स्ट्रेट सीधा अपस्टेयर्स चला गया। नो वन स्टॉप्ड हिम फॉर ही वाज ए फ्रीक्वेंट विजिटर, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट विजिटर था, हर रोज आने वाला था वहां पे, तो किसी ने उसको, नो वन स्टॉप्ड, किसी ने नहीं रोका, टू द हाउस, घर में वो फ्रीक्वेंट विजिटर था, अक्सर आने वाला था। राजप्पा सेट डाउन एट द नागार्जुना's डेस्क, राजप्पा नागार्जुन के डेस्क पर बैठ गया, डेस्क मेज पर बैठ गया वो। ए लिटल लेटर नागार्जुना's यंगर सिस्टर कामाक्षी केम इन, थोड़ी देर बाद, लिटल लेटर, नागार्जुन की जो छोटी बहन है कामाक्षी वो अंदर आई। ब्रदर हैज गॉन टू टाउन, शी सेड, उसने कहा कि भाई तो टाउन में चले गए हैं, ब्रदर हैज गॉन टू टाउन, शी सेड। हैव यू सीन हिज न्यू एल्बम, क्या तुमने उसकी नई एल्बम को देखा है, और साथ में ये भी पूछ लिया उसने, कामाक्षी ने, रजप्पा से। रजप्पा मबल समथिंग अनइंटेलिजिबल, कुछ ऐसा बुदबुदाया उसने जो समझ में नहीं आया, समथिंग अनइंटेलिजिबल, जो समझा न जा सका। इट्स ए रियल ब्यूटी इजंट इट, ये बहुत सुंदर है, क्या ये नहीं है। आई बिलीव नो वन एल्स इन स्कूल हैज वन लाइक इट, मैं मानती हूं कि किसी के पास ऐसी एल्बम स्कूल में नहीं होगी। हु सेड दैट, ये किसने कहा, राजप्पा बोला। माई ब्रदर, मेरे भाई ने कहा, और कामाक्षी ने ये बात बोली। इट इज जस्ट अ बिग एल्बम, नो मोर, इज इट इनफ मियरली टू बी ओवरसाइज्ड, ये केवल एक बड़ी सी एल्बम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही इसके अंदर कोई चीज है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा चिढ़ते हुए रजप्पा ने उसको कहा कि। कामाक्षी डिड नॉट रिप्लाई एंड वॉकड ऑफ, कामाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे बढ़ गई, वॉकड ऑफ। राजप्पा स्कैन्ड द बुक्स लिटर्ड ऑन द टेबल, लिटर्ड जो लदी हुई थी, मतलब काफ़ी सारी रखी हुई थी टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक्स, उनको वो स्कैन करने लगा, स्कैन मतलब उनके अंदर से झांकने लगा, वो अच्छे से उनको देखने लगा। हिज हैंड ग्रेज्ड अंगेंस्ट द लॉक ऑफ द टेबल ड्रार, और उसका हाथ धीरे धीरे, ग्रेज्ड जैसे चढ़ने वाली मुद्रा में, आगे धीरे धीरे उसका जो हैंड है, हाथ है रजप्पा का, वो लॉक की तरफ गया जो ड्रार में लगा हुआ लॉक था। ऑलमोस्ट इन वॉलेंटरली ही टग्ड एट इट, और बिना इच्छा के भी उसका हाथ इसके अंदर चला गया, टग्ड एट इट, इसके अंदर डाल दिया उसने। इट वॉज फर्मली लॉक्ड, ये बिल्कुल
दृढ़ता से लॉक हुई थी, ये ड्रॉर बिल्कुल लॉक थी। वाई नॉट ओपन इट, क्यों नहीं इसको खोल दूं। द की ले अमोंग द बुक्स, वो किताबों के अंदर इसकी चाबी पड़ी हुई है। राजप्पा वेंट ओवर टू द स्टेयरकेस एंड ग्लेंस्ड अराउंड, राजप्पा स्टेयरकेस के पास गया, सीढ़ियों के ऊपर रखे जो अलमारा उसके पास गया, और ग्लेंस्ड अराउंड, और इधर ग्लेंस करने लगा, देखने लगा, ढूंढने लगा। ग्लेंस देखना। नो वन वाज इन साइट, उसको वहां पे कोई भी उसकी नजर में नहीं आया, उसकी दृष्टि में नहीं आया, साइट में नहीं आया। ही ओपन द ड्रॉर, उसने ड्रॉर को खोला। नागार्जुना स्टैम्प एल्बम वाज राइट ऑन द टॉप, नागार्जुना की जो स्टैम्प एल्बम थी वो बिल्कुल टॉप में ऊपर रखी हुई थी। राजप्पा टर्न्ड ओवर द फर्स्ट पेज, राजप्पा ने उसके पहले पेज को पलट कर देखा। एंड रीड द इंस्क्रिप्शन, और उसके ऊपर उसने लिखे हुए इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। हिज हार्ट बिगेन टू पॉन्ड, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पॉन्डिंग करने लगा। हिज हार्ट स्टार्ट थ्रोबिंग और बीटिंग लाउडली। ही क्लोज द ड्रॉर, उसने ड्रॉर को बंद किया। एंड लॉक्ड इट, और इस पे फिर ताला लगा दिया। ही थ्रस्ट द एल्बम, उसने इस एल्बम को दोबारा थ्रस्ट किया, अपने डाल लिया, थ्रस्ट ठूस लिया, उसने डाल लिया इनटू हिज शॉर्ट्स, अपनी निक्कर के अंदर, जो शॉर्ट्स वो पैंट डाले हुए था उसके अंदर उसने उसको डाल दिया। एंड लेट हिज शर्ट फॉल ओवर इट, और अपनी शर्ट को इसके ऊपर डाल लिया, शर्ट के नीचे उसको ढक लिया। ही हरिड डाउन द स्टेप्स एंड रेन होम, वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और घर चला गया। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी हैव डन, डियर स्टूडेंट्स। You will find this video in two parts. The second part you will soon find, and the link of the second part of the current chapter you will found in the description box of the first video, i.e. that is means in the first part of this video you will find the second part's link. So how do you like my teaching, dear students? Please comment in the box, and what sorts of improvements you want on my behalf, or how can I make much better efforts to make you understand in the better way. So please suggest me, and to motivate me, to promote me, do subscribe my channel and also recommend it to your friends and near dear ones. For this is enough for today, and thank you and have a nice day, dear students. May God Saraswati bless you. Thank you.